So yesterday I was doing one problem, it was incompleted. So let us take that problem. It was problem number 5. I was taking part A. Solve the following system of linear equation. Solve the system of linear equation. Two x minus 3y is equal to 1. 2x minus y plus z is equal to 2. 3x plus y minus 2z is equal to 1. ये प्रॉब्लम एक थी, इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स मेथड. ओके, मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे इसे. तो वन सिस्टम इज गिवन टू यू, यू हैव 3 इक्वेशंस एंड यू हैव गॉट हियर 3 अननोन्स ना. तो इसको यू कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म आल्सो. अगर इफ यू विल राइट मैट्रिक्स फॉर्म तो आई कैन राइट ए x is equal to b, where a is your matrix, x is the variable. In this system you can write in this way in matrix form: 2 minus 3 0, 2 minus 1 1, 3 1 minus 2. This will be a matrix 3 by 3. X means your column vector, the knowns x y z. Now you can see if you will multiply, it will give you the system, and b will be what? The column matrix of this copy right hand side. So it will be 3 cross 1. So ultimately it will be 3 cross. No? So this thing can be written in a matrix form. So you want to solve it in using matrix formula. So what I will do? Firstly, I will write the matrix which is called augmented matrix. The augmented matrix. It is called coefficient matrix. इसको अगर मैं मार्क से कर लिखूंगा तो it is called augmented matrix. Augmented, E-N-T-E-D. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A is to B. This will be what? Include the column in the coefficient matrix. Three, 1, minus 2, 1. Okay. Now I will solve it. To what I will do? I will reduce this matrix into row reduced echelon form. I will try to reduce it, row reduced echelon form. And then there we can solve it easily. Okay. So what I will do? First thing, like first here I want this 1. So there are different ways. One way is you divide by 2, है ना, लेकिन उससे क्या होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा. फ्रैक्शन में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती. तो बेटर आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट इनटू 1 विदाउट फ्रैक्शन. क्या करें बताओ? सर उसको 2 को पहले वाले को सर 2 से डिवाइड कर सकते हैं सर पूरा. डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ -3/2 आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो थोड़ा सा अगर हम, है ना, फिर माइनस करोगे तो फ्रैक्शन के टर्म्स माइनस करने पड़ेंगे. वैसे तो आप कर सकते हैं उस तरीके से भी. वो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड वाले से माइनस करते हैं. हाँ, एक तरीका ये भी है. तो फ्रैक्शन नहीं आएगा है, ऐसा कर सकते हैं. सही कह रहे हैं. या हम इसे रिप्लेस कर दें, R3 को ऊपर ले जाएं पहले और फिर माइनस करें तो भी हो जाएगा. क्यों? यस सर. देयर आर सेवरल वेज. जैसे आपने बताया फर्स्ट के, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कर सकते हैं. क्या कर सकता हूँ मैं कि R1 में, इन R1 2R1 minus R3.
ये तरीका लगाएं. There are different ways as I told you. So what will happen to R1 minus R3? So it will become 4 minus 3, 1, and this is minus 6 minus 1 minus 7, 0 minus minus 2 plus 2, 2 under 2 minus 1, 1. Okay, R2 as it is. Three, 1 minus 2, 1. And now you know, इसे 0 करना है तो क्या कर सकते हैं? You can write it now twice, है ना? In Yes, sir. R2, Twice of R1. in R2, R2 minus 2 R1 and Twice of R1. R3, R3 minus Minus thrice of R1. thrice of R1. So it will become, when you will solve it, to R2 minus 2 R1. So first R1 as it is and R2 minus 2 R1. So twice this will be 0 definitely. This will be also 0. So twice. So minus 8, minus 1 and plus 8. So it will be 7 and 1 minus 4 minus 3 and 2 minus 2, 0. And this is 0, 3 R1. So 3 means 27. 1 plus 27 is 28 and minus 2 minus 6 minus 8 and 1 minus 3 minus 2. Is it clear? Now you got next. So here if you see, I will add it. So 7 plus 7, 0 and यहाँ 13 आना चाहिए ना 7 की जगह. कहाँ ये Yes, which sir. वहाँ पे 13. ये सर वहाँ 7 2 जा 14 और फिर कौन सा एलिमेंट माइनस का 1. ये यस कौन सर हाँ ये yes वाला. sir, वही सा ये correction वाला यहाँ पर है. R2 minus 2 R1 minus 1 and this minus 2 R1. So minus 1 and plus 14. Yes, 13 आएगा, सही कह रहे हैं, 13 आ जाएगा. ठीक है. ओके, क्या क्वेश्चन का अपना ध्यान रखना है देखो इस चीजों में. नाउ अगेन आई विल टेक सर उसके नीचे वाला भी चेक करिए सर. ये वाला. हाँ चेक कर लो. 3 Yes, minus sir. 3 0 and 1 minus 3 7 the 28. 3 7 the सर 21. 21. कितना आ रहा 4 होगा सर वहाँ पर. 24 आएगा. है? 24 क्यों आएगा? ये 24. 1 है ना ये, तो 7 या 21, 22 आएगा. 22 आएगा 22. 22 आ जाएगा. यस, ठीक है. ओके, ये सही है. 3 to the 6 minus 8 and 2 1 3 and 1 minus 3. ये ठीक है. ओके, नाउ अगेन आई विल टेक. अब या तो इसमें अब यहाँ पर आप इसे डिवाइड करें, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर तो 13 है, तो आई हैव टू डिवाइड बाई 13. और कोई तरीका है वेयर आई कैन गेट ट्वाइस लें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो फिर प्रॉब्लम होगी. 22 है. ये 7 2 जा 14 करके ऐड कर दें अगर इसमें. हाँ, तो क्या होगा? ऐड ये करेंगे 1 बन ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, ये -1 बनेगा, -1 हो जाएगा. हाँ. और बाद -1 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसा कर सकते हैं, है ना. yes, तो क्या कर ले रहे हैं R2 में, इन R2 प्लस 2 R1 yes, sir. प्लस करेंगे क्योंकि माइनस है ऑलरेडी. तो व्हाट विल हैपन, 1 minus 7. लेकिन 0 डिस्टर्ब हो जाएगा. नहीं 0, हाँ 0 डिस्टर्ब हो जाएगा
क्योंकि यहाँ 0 है हमारा, ये चीज खत्म हो जाएगी। सही कह रहे हैं, ये भी देखना होता है सर ना। 13 से डिवाइड कर दीजिए ना। चलो डिवाइड कर दो, ये 0 डिस्टर्ब हो गया तो फिर हमारा ये वो फॉर्म नहीं रहेगा। तो इसे एक काम करो फिर, आई विल डू व्हाट, डिवाइड कर देते हैं चलो, है ना। ऐसा नहीं डिवाइड करना नहीं, कर सकते, बच रहे थे हम, कोई बात नहीं। क्या करो, डिवाइड कर दो यहाँ पे, R2/13। So what will happen? 0, 1 minus 3/13 and 0/13, 0, 0, 22 minus 8 minus 2। अब ये 1 आ गया, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ये आपको वो मिल जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो फाइनली सॉल्व हो गया। आई थिंक ये जो आपके पास आई, अब इसे वही कर देंगे। स्टेप लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, नो R1 करेंगे, व्हाट, R1 is equal to R1 plus 7 times of R2। हाँ R1 + 7 टाइम्स ऑफ R2, ये R1 में होगा, एंड R3 में होगा R3 minus 22 R2। times of R2। yes sir। तो फाइनली जो मैट्रिक्स आपकी आ रही है, इसे चेक कर लेना एक बार, सॉल्व होके ये आ रही है 1 0 minus 23 minus 15। फाइनली आफ्टर, है ना, ये फाइनल आ रही है ये, उसके बाद नहीं, फाइनल मैट्रिक्स। एक दो स्टेप और करेंगे आप तो। अभी तो इसमें आपको ये 0 1 और ये 0 0 मिल जाएगा, उसके बाद फिर 10 ये हो सकता है ये फाइनल मैट्रिक्स नहीं आया आपके पास, क्योंकि स्टेप्स आपने चेंज किए हुए हैं। ये जो मैट्रिक्स आ रही थी इसकी कैलकुलेशन कुछ और थी। आंसर Z XY का तो सेम ही आएगा। ये मैट्रिक्स फाइनल जब आएगी जब स्टेप्स कुछ और थे, अभी इसमें शायद ये नहीं आएगी। चलो इसे मैं लिख देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। अभी वही लिखते हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि आंसर तो सेम ही आना है। चलो अभी इसी से लिखते हैं, एक स्टेप और जरूरत पड़ेगी। तो जब आपने डिवाइड किया तो देखो, फर्स्ट R1 + 7 R2 विल हाउ मच, 1 0 1 0। बताओ जरा, देखो कैलकुलेशन चेक करना, क्या करना हमने, R1 + 7 R2, R1 + 7 R2 कितना हो गया, 2 माइनस, ये माइनस था ना, 7 3 21 अपॉन 30, यही तो जाएगा। तो हाउ मच, 26 माइनस 21 कितना बचा, 5/13। 5/13। तो ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट 5/13। एलिमेंट विल बी 5/13। लास्ट फोर्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, जो 0 है तो 1 ही रहेगा, ये तो है ना, yes sir। ये 1 रहेगा। देन इट विल बी 0, इट विल बिकम 1, एंड R2 में कोई चेंज नहीं होना है, तो R2 एज इट इज, -3/13 एंड 0 0 0 ना, R3 minus 22 R2, तो -8 minus 22, तो ये जाएगा प्लस, एंड 22 into 3 हाउ मच, 66 अपॉन 8। So how much, 8 into 64 minus 64 plus 66, 2/8 13 आएगा ना है, सर, अपॉन 13। 3, हाँ 22 से इंटू करी ना हमने इसमें माइनस करके, अच्छा सॉरी 13 आएगा सर तो ये, 66 हाँ हाँ अपॉन 13। चलो कोई बात। तो ये कितना हो जाएगा, 2/13, चलो, है ना, ये तो सही है। इसको चेंज करो, बताओ कितना, 8 3 24, हम्म, 13 8 कितना हो गया, 24 4
लगे 2 8 टमाटर 2 10 104 -38 आ रहा है सर, -38/13। ये हो गया। कितना बचा इसमें से? ये गया तो 4 और तीसरा -38/13, ठीक है, -38/13। और लास्ट वाला क्या है भाई? 0 था, तो ये तो -2 ही रहा। Yes. This is coming. Now you can see now it is in echelon form, क्योंकि इसमें अब हमारे पास क्या लास्ट ये है, इसको भी हम कर सकते हैं, है ना, इसको भी 1 बनाना है, इसे कर सकते हैं अभी हम। और क्या करें, इसमें 13/38 से मल्टीप्लाई करो पहले, इसे 1 बना सकते हैं अभी, या अगर इतनी Yes. या ये 0 0 हमारे पास ये आ गया 1 0, तो नाउ आई कैन राइट इट इनटू दैट, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये यहाँ पे। सर पहले उसको 1 ही बनाइए सर, तभी होगा। तो क्या करें, इसको R3 13 में इंटू कर दें माइनस ऑफ 13/38। R3 में, तो उससे ये आपके पास बन जाएगी 0 0 1 एंड हाउ मच, माइनस माइनस प्लस 13 2, 26. यस सर, -13 20 प्लस हो जाएगा है। सर, उसको काट दीजिए सर, 13/99 किसे काट दें? सर, 26/38 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो यही तो आएगा 26/38, जब -2 से सर इंटू 2 करिए। अंदर 2 2 3 6, और सर नीचे 2 अंदर 2 2 9 18। अच्छा, तो इससे हम क्या लिख दें? ऐसे और सिंप्लीफाई कर सकते तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 8 16 एंड 2 एकम 2 नहीं, ये हो जाएगा। चलो 0 1 -3/13 0 1 0 5/13 1। ओके, ये आ गया। कैलकुलेशन की आदत बिल्कुल खत्म हो गई, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलो हैं। ये सर 13 वो आएगा, 13 होगा सर, हाँ 13 होगा। तो एकदम 13 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसे लिख दे रहे हैं सही से, 13/19 हो जाएगा ये, 13/19। सो नाउ अगेन एक स्टेप और करना है हमें। अब ये क्या करना है, R1 में R1 माइनस -5/13 R3 एंड R2 में R2 में R2 सर प्लस, R2 प्लस 3/13 R3। ये कर रहा है बस लास्ट स्टेप। तो R1 में चेंज होगा, तो ये तो 1 रहेगा एज इट इज, 0 तो नहीं जा रहा ना, 0 -0 नहीं होगा, ये 0 रहेगा, ये इकोनॉम फॉर्म आ गई है। यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 0, और ये लास्ट स्टेप चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ जरा, 1 -5/13 R3। देखो जरा 30 से 13 कैंसिल हो गया, तो 1 -5/9, 5/19. हाँ कितना हो गया, -5/9। तो कितना हो गया 90 - 5 14/19, 14/9. ठीक है। R2 में R2 प्लस, so 0 1 एंड दिस विल बी 0, और ये कितना है देखो R2 प्लस 3/13 R3, तो 0 प्लस 13 से 13 कैंसिल, 3/19 है ना, बोलो। और ये R3 एज इट इज 0 0 1 13/19। अब देखो, सो नाउ फाइनली ये आ गया आपका। सो नाउ यहाँ से यू कैन राइट, अब इफ यू, ये किसका कोएफिशिएंट था, ये था आपका x, ये था y, ये था z, और ये था b।
So finally now when you will put back to the values तो क्या होगा 0 into x plus 0 into y plus 0 into z is equal to, है ना, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आपने शायद ये मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ये पहले हम सिस्टम को सॉल्व करते हैं फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से। तो ये आपके पास z का कोएफिशिएंट है, तो z इज इक्वल टू हाउ मच, क्योंकि ये आपका b था, तो z इज इक्वल टू Yes, sir. डायरेक्ट 13 13 by by 19, 19. y is equal to 3 by 19, 3 by 19 and x is equal to 14 by 9, है ना। इट इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से आपने सिस्टम को सॉल्व वही करा जैसे अगर आप इसे साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे होते बाय टेकिंग कि यहाँ मल्टीप्लाई करते पहले 3 से ऐड करते 3 को एलिमिनेट करते हैं ना, वही चीज हमने क्या करा है, बस मैट्रिक्स फॉर्म में लेके करा है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में से रिड्यूस करा है इक्वेलन फॉर्म में और फिर डायरेक्ट लिख दिया आंसर निकाल के, डायरेक्ट वैल्यू निकल आई। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अरे आंसर तो सेम ही आएंगे ना, कुछ भी आंसर सेम है, हाँ वो अगर तो हम सेम ही फंक्शन आएगा, लगा यस रहे हैं। यस, आंसर तो सेम ही आएगा लास्ट में जब आप सॉल्व करके लिखेंगे, है ना। ये मैट्रिक्स आपकी बीच की मैट्रिक्स कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन जो लास्ट मैट्रिक्स आएगी सॉल्व होके वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। यस फाइनल आंसर यही आएगा। तो नेक्स्ट इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आपने आप ट्राई कीजिएगा, फिफ्थ के बी सी आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव 5.8। भैया ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में जैसे भी हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। So suppose if I have m linear equations and n unknowns, so you can write m linear equations and n unknowns. Suppose you have alpha 1 1 x1, alpha 1 2 x2 and so on, alpha 1 n xn is equal to b1 and alpha 2 1 x1। 3 थे पिछली प्रॉब्लम में तो हमने एक्स वाई जेड ले लिया। अब अगर n अननोन्स हैं तो मैं एक्स वाई जेड की जगह x1 x2 रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा, प्लस alpha 2 2 x2 and so on, alpha 2n xn is equal to b2 and so on, alpha m1 x1 bm। okay, so this is a system of equation, you can see x1 to xn n unknowns है and 1 to m linear equations है। It is called non-homogeneous if at least one of b is not 0. It is called, if it is 1, this one is called non-homogeneous. Homogeneous. In short, I can write capital NH. System if at least one of bi's is non-zero. अगर सारे जीरो जाएंगे तो इट इज कॉल्ड होमोजीनियस, है ना। yes, sir. If all bi's are 0, then one is called homogeneous। नॉन वर्ड हट जाएगा बस, होमोजीनियस, इसे शॉर्ट में एच लिख देते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये पीछे बताया था, है ना. यू कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म AX is equal to B, where A is the coefficient matrix, A is the coefficient matrix. तो coefficient matrix जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, वो अल्फा 1 1 अल्फा 1, जो आपके पास ये एंट्री जैसे अभी हमने पीछे लिखी थी ना, ये बिल्कुल सेम. यहाँ पे 3 थे बस, तो 2 - 3 0 ले लिया था. यहाँ पे कोफिशिएंट्स आपके पास m है, तो फर्स्ट रो विल बी योर फर्स्ट कोफिशिएंट अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 एंड सो ऑन अल्फा 1 n 2 1 2 2 2 n, लास्ट में m1 m2 and alpha mn. So it will be a m cross n matrix, m rows and columns, and X will be a column matrix carrying all the knowns xn. So it will be having m rows, 1 column. So the product will be what, m cross में कितने हैं, n rows हैं, ये n rows हैं, ये है ना. तो product will be what, m cross 1. It will be your okay. You know product का possible होता है when this and this will be same, m cross n cross 1, तो ये सेम होना चाहिए. So the product will be a matrix of m cross 1. So in this matrix form you can write this system equation. तो ये x जो होता है ये आपका कॉलम वेक्टर होता है, b इज आल्सो अ कॉलम वेक्टर, इसे हम ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं. तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है इसकी, A is called the coefficient matrix here. A is called the coefficient matrix. And A into B, A into B नोटेशन है, इसमें B भी इंक्लूड कर दें. दिस इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो भी पीछे लिखी थी मैंने. हाँ, तो देयर इज वन रिजल्ट थ्योरम है जिसके स्टेटमेंट है सिर्फ आपके सिलेबस में. यू हैव गॉट ओनली स्टेटमेंट्स. थ्योरम 5.8.1, पेज नंबर 195. फर्स्ट इज एग्जिस्ट, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, एग्जिस्टेंस. The system नॉन होमोजीनियस, जो भी हमने NH लिखा था, हैज अ सॉल्यूशन if and only if the matrix A and the augmented matrix A, B, इसे A, B से रिप्रेजेंट करते हैं, S to B या A, B. हाँ, A, B से कर रहे हैं तो A, B लिख लीजिए आप, इस ब्रैकेट, ये नोटेशन है, A, B. ठीक है, कहीं पर A to B भी लिख देते हैं. एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A, B हैव द सेम रैंक. दोनों मैट्रिक्स की रैंक सेम होनी चाहिए. अगर दोनों की रैंक सेम है तो सॉल्यूशन होगा. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, एक प्रॉब्लम करिए, मैंने ये देखो, इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, सर 3 होंगे सर. है ना. Three. इसको हाइड कर लो अभी. तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए जब सी और मैट्रिक्स ए, इसकी रैंक 3 है क्योंकि इक्लोन फॉर्म में इट हैज 3 नॉन जीरो रोज, है ना. हमने रिजल्ट पढ़ा है कि इन द इक्लोन फॉर्म द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. और व्हाट अबाउट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बी भी ऐड कर दो. अब क्या है रैंक इसकी,
इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक क्या है 4/4 मैट्रिक्स की? सर 3 into 4 इसके भी सर भी 3 नॉन जीरो रोज तो अभी भी 3 है तो सर। 3 रही ना, तो यहाँ पर Yes, sir. ऑगमेंटेड की रैंक भी 3 है ना? तो यहाँ पर इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये आपका सॉल्यूशन देखो एग्जिस्ट कर रहा था, निकाला आपने। अगर ऐसा होता मान लो कि ये भी 0 आ जाता सपोज, तो उस केस में क्या होता? मैट्रिक्स की रैंक तो हो जाती 2 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हो जाती 3। 3 उस केस में क्या होता? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्योंकि यस आपके पास यहाँ 0 0 हो जाता। तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है जो मैंने ये बात लिखी कि द मैट्रिक्स से एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से दे हैव द सेम रैंक। अगर सेम रैंक है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, बी पार्ट है कि यूनिक होगा कि नहीं। यूनिकनेस, तो यूनिकनेस के बारे में दिस थ्योरम स्टेट्स इफ द सिस्टम, ये NH जो मैंने अभी 1 लिखा है ना, हैज अ सॉल्यूशन देन, इफ सिस्टम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कब होगा? जब फर्स्ट पार्ट ए चीज हो लोड होगी। मान लो सॉल्यूशन है यानी कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी, देन द सॉल्यूशन इज यूनिक, then the solution is unique if and only if the rank of A is equal to number of unknowns n, जो यहाँ पर हमारा n है ना। और उस प्रॉब्लम में क्या था? इसमें कितना था? 3 अननोन थे ना यहाँ पे, x y z है ना। तो सॉल्यूशन क्या आया आपका निकल के? यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आया था। देखो ये यूनिक सॉल्यूशन है, z की वैल्यू फिक्स आई, y फिक्स, x फिक्स। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 3। क्यों है बिलाल? यस सर। हाँ, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के अगर आ रैंक जाएगा। ऑफ हाँ, यस है ना। तो एक चीज ये भी है कि इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी, देन द नो यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इनफैक्ट यूनिक नहीं, यूनिक की बात जब करेंगे जब एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब नो सॉल्यूशन है तो यूनिक की बात नहीं होगी, बस डायरेक्ट नो सॉल्यूशन लिख देंगे। तो इस पे बेस एक क्लियर है बात। ये भी यस सर यस। ये कुछ रिजल्ट्स हैं रैंक को लेके, ये रैंक से, क्योंकि इन रियल लाइफ there are so many problems which can be written in a system of linear equation. जब उसे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो वी यूज डिफरेंट मेथड्स। तो उसमें से एक मेथड आपका मैट्रिक्स मेथड होता है। तो वहां पर हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं कि हाउ वी कैन गेट द सॉल्यूशन। रियल लाइफ में ये सिस्टम इक्वेशन आपका बहुत बड़ा हो सकता है। योर अननोन मे बी 100 और मोर देन 100, योर इक्वेशंस मे बी 50 और 60 और 80। तो एक बड़ा सिस्टम होगा, उसे आप मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड some methods to solve it। तो उसमें हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक, वन मोर थ्योरम इज देयर 5.8.2। उसमें कुछ और रिजल्ट्स हैं कि व्हेन द सिस्टम इज यूनिक व्हेन इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो 3 केस पॉसिबल होते हैं। वन केस इज सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन एंड इट इज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। 3 थिंग्स आर देयर। टाइम आउट हो जाएगा तो फिर आई विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट क्लास। सिस्टम में हैव कंसिस्टेंट एंड इट मे बी इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो 2 केस हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन
सर ले लीजिएगा क्लास, इसके बाद तो खाली हम लोग तो। अब बच्चे कम है यार, मजा नहीं आएगा। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी। सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। अगर आपकी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो यूनिक होगा। ओके लेकिन अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी है तो कंसिस्टेंट है, लेकिन लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, तो उस केस में क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी, तो देन इट विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है?